Right, big news coming in. Is this a big embarrassment for the Sukhwinder Sikhu government in Himachal Pradesh? The Sikhu government, having failed to pay the power dues, has led to a massive decision by the High Court in Himachal Pradesh. Listen carefully when I say that the Himachal Pradesh High Court has ordered to attach the Delhi Himachal Bhavan, which is a government property, and that has to be attached because 64 crore rupees were pending dues by the state government. The government appealed against the attachment order, and this also is, remember, reflective on presently a lot of issues being faced by the Himachal Pradesh state government, specifically when it comes to the coffers, to the financial issues. It pertains to one of the projects, a power project for 2009, and because the agreement couldn't then go ahead, it has led to a massive financial burden on the companies as well. Himachal Bhavan, just to tell you, is right in the is right there in central Delhi, bang in fact in one of the most prominent locations of central Delhi. My colleague Amit Bhardwaj, in fact, is right there at Himachal Bhavan right now. It's a prominent, busy location, Mandi House, if I'm correct, Amit, where this Himachal Bhavan is. What are you hearing about what happened that a Himachal Bhavan, which is a government property, has been there for the state officials, is just, it has to be attached now? Right, Pooja. Very unfortunate news for people of Himachal Pradesh. This Himachal Bhavan right behind me has remained the icon of Himachal's identity in the national capital as well. Centrally located at Mandi House, one of the most premier locations in the national capital. And you have had all sorts of cultural and political as well as administrative engagements happening at Himachal Bhavan. But now the Himachal High Court has passed an order in regards to the money that was being claimed by the Selhi Hydro company. 64 crore rupees is the premium amount that the Selhi Hydro company has been seeking from the Himachal government. Amit, stay on with me because we're already getting reactions while Amit is getting us this ground report as well from Himachal Bhavan in Delhi. Jairam Thakur, former Chief Minister, Himachal, is joining me. जयराम ठाकुर जी, आप मुझे बताइए किस तरह से इसको देखा जाए न्यूज को? नहीं, देखिए, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएशन है, स्थिति है हमारे स्टेट के लिए, और सचमुच में एक के बाद एक फैसले कोर्ट से आ रहे हैं, फर्जियत होती जा रही है। सरकार किसी भी चीज को गंभीरता से नहीं ले रही है, और हालात ये बन गए कि जो हमारे बहुत प्रीशियस जो हमारे ऐसी जो धरोहरें हैं और उसके साथ साथ में ऐसे हमारे भवन हैं, उनकी नीलामी की नौबत आ गई। और जिस प्रकार का ये फैसला है, ये तो सचमुच में पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ये चिंता का विषय बन गया है इस तरह से। पर जयराम ठाकुर जी, आप भी मुख्यमंत्री रहे हैं, आपका भी टेन्योर रहा है, तो यही एक पॉलिटिकल बिकरिंग भी तो रही है कि जो पुरानी बीजेपी सरकार थी वो भी इन्वॉल्व थी, उन्होंने भी जो फाइनेंशियल इश्यूज को रिजोल्व करने के लिए कुछ किया नहीं, वो बढ़ता गया। तो उस पर आप क्या कहेंगे फिर? क्या ये हर सरकार का एक फेलियर नहीं है हिमाचल प्रदेश को लेकर? इस बात के लिए पीछे की सरकार को दोषी देते हैं तो ज्यादा समय तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है। अगर आप इसी प्रश्न को पूछ रहे हैं तो मेरा सीधा कहना है कि ये हिमाचल की जो स्थिति जो बद से बदतर बनाई है, उसमें सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि लंबे समय तक सत्ता में वो रहे, ऋण लेते रहे और उसके बाद हालात ये बने हैं। 93 के बाद हिमाचल प्रदेश में जो लोन लेने का जो क्रम चला, जब उस वक्त जरूरत नहीं थी, 93, 94 में बिल्कुल जरूरत नहीं लोन लेने की, और उसके बाद लोन इस कदर ले लिया, बिना वजह के ले लिया, और वो ऐसी जगह खर्च किए वो पैसे प्रदेश के विकास में नहीं और फालतू की चीजों में खर्च किया, और उसके बाद वो क्रम बढ़ता गया, उसके बाद रुका ही नहीं सिलसिला। क्या जयराम ठाकुर जी हो गया, आप भी मुख्यमंत्री रहे हैं, कि एक सरकार हिमाचल भवन जो एक प्राइड होता है, प्राइम इंपॉर्टेंस का दिल्ली शहर में, उसको अब अटैच कर दिया जाएगा, उसकी सेल हो जाएगी। हिमाचल भवन तो मैं दिल्ली में बचपन से रही हूं, मैंने हिमाचल भवन देखा है, हम आसपास गए, वहां इतने इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, और वो हिमाचल प्रदेश का ही नहीं रहेगा। यही हमारे लिए सबसे बड़ी पीड़ा का विषय है। जब ये हालात बन गए थे, परिस्थितियां ये बन गई थी कि सारे मामले को लेकर के कि ऐसी जो है नौबत आ सकती है, और ये 2023 का फैसला, और 2023 के फैसले के बाद कोर्ट से
फैसला आने के बाद कोई भी सरकार ने अभी तक जो है गंभीरता से इसको नहीं लिया। आखिरकार स्थिति जब एग्जीक्यूशन के लिए मामला कोर्ट में लगा तो उसमें कोर्ट ने फैसला दिया 64 करोड़ रुपए जो प्रीमियम अमाउंट जो है बढ़ करके वो 150 करोड़ तक पहुंच गया है। अब 150 करोड़ रुपए का मतलब यह है कि भी बहुत बड़ा अमाउंट है। और उसके बाद सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि हमारी जो बहुत महत्वपूर्ण धरोहर जिसको हम कह सकते हैं हिमाचल भवन दिल्ली में, इसके सिवाय हिमाचल भवन के अलावा हमारे पास और कुछ है नहीं वहाँ पर, वो भी नीलाम होना और उसकी इस तरह की स्थिति आना, तो ये सचमुच में बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं। बट आप क्या मानते हैं क्यों हुआ? क्योंकि क्या ये सिर्फ इस सरकार को ब्लेम दिया जाएगा, सक्सेसिव सरकार कुछ नहीं कर पाई ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स? और ये एक प्राइड का मुद्दा था, क्या सारी पार्टी साथ में जुड़ के कोई एक सोल्यूशन नहीं निकाल सकती थी कि कुछ हो पाए, कम से कम जो हिमाचल भवन है उसको तो बचाया जा सके? आप क्या मानते हैं कि ऐसी क्या बात हो गई कि पावर प्रोजेक्ट्स और कंपनीज को पैसा देने के लिए कुछ नहीं था और जिसके लिए हाईकोर्ट को अटैच करना पड़ा? इस सारे मामले को लेकर के सिर्फ इतनी बात है कि जब दिख रहा था कि मामला इस प्रकार से हमारे सामने आया, उसको गंभीरता से लेना चाहिए था। जो कंपनी है, जिस कंपनी के साथ उसको आप नेगोशिएशन के लिए बुला सकते थे, उसको चर्चा के लिए बुला सकते थे। और उसके बाद और रास्ते उसमें बहुत सारे थे जिसमें जो एक्सप्लोर किए जा सकते थे। लेकिन ये फैसला तो सचमुच में इस प्रकार का जो आया है, इसको अवॉइड करने के लिए कोशिश की जा सकती थी। अब आप अंदाजा लगाइए, हिमाचल प्रदेश सरकार की जो प्राथमिकता बनी हुई है सरकार को बचाने की, सीपीएस पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। दिल्ली से जहाज में वकील आते रहे यहाँ पर कोर्ट में पैरवी करने के लिए, वो भी फैसला इनके अगेंस्ट हो गया। अब एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी एक वकील 1 करोड़ रुपए लेता है इनका, उस वक्त पैसा खर्च कर रहे हैं। लेकिन जो हिमाचल की जो ऐसी जो बहुत हमारी प्रेस्टिजियस जो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं और जो धरोहर जिसको मैं कह सकता हूँ, उनको नीलाम होने की नौबत से बचाया जा सकता था। लेकिन ये सारी चीज को गंभीरता से नहीं लेना, वही एक परिणाम जो है हमको भुगतना पड़ रहा है। So a hydro project could not come through. Himachal Bhavan is going to be auctioned away. It's sad and disturbing that what is unfolding then in the state of Himachal Pradesh and why the government is unable to really put everything together, and a political showdown because it's a Congress governed state, so the BJP is jumping in.